Good morning, students. So in earlier video you have seen about this velocity time graph. Okay, so I hope that all of you have gone through this deeply and you have understood this topic minutely. So I have given you some introduction about the equation of motion by graphical methods. There are equations, okay, which we use to find some numerical problems. Okay, so first of all we have to derive them from the graphs that we have studied, right? So what I told you, that distance time graph and velocity time graph. So on the basis of that graphs we have to derive the equations of motion, right? So I told you that in numerical problems sometimes we have been given the initial velocity, sometimes we have been given the time, we have been given the acceleration, we have been given the velocity. So some terms have been given in the question itself and other we have to find. Okay, so we can use these equation of motions are that v is equals to u plus at, then s equals to ut plus half at square, and 2as equals to v square minus a square. So what these v's are, that I told you, always take this initial velocity as u, find as v, a is acceleration, t is time, and s is the distance travelled. Okay, so now we have to go through them one by one. We have to derive them actually from the graph that we have studied. So for that we have to consider something. So let's come to them one by one. First is equation for velocity time graph, that is v equals to u plus at. Okay, v equals to u plus, here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration, and t is the time. So let's see what are what conditions you have been given with, and with these conditions you have to come up with the equation v equals to u plus at. Okay, so whatever we have studied in earlier videos, that is going to be used here. If you remember them, only then you will be able to understand. Okay, so now see, first the condition is consider a velocity time graph for a body moving with uniform acceleration. ठीक है, so I already told you what is uniform acceleration. ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ that if there is a uniform change in the velocity, means change in velocity is constant. It is not that velocity is constant. If velocity is constant, then acceleration will be 0. Here I am saying the change in velocity is constant. The change in velocity is uniform. The change in velocity is same. Right? So अगर समझ नहीं आया तो मेरा पिछला वीडियो देखना जिसमें मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का समझाया था. So we have to consider that velocity time graph for a body which is moving with uniform acceleration a. The initial velocity is u, and let's come to the graph. That initial velocity is u at point A. Okay, and it's given the final velocity is v at b in time t, when it covers some time, because we have taken this x-axis as time axis and y-axis as velocity. Okay, so it started its journey with the velocity u. Okay, and then it is moving and it reached to point b in time t, this from 0 to this t seconds. So at t time the body have reached here. Okay, and at this point, at point b, the velocity is v. You can see here the velocity is v. ठीक है, sorry. So now see, you have to see there perpendicular lines BC and BE are drawn from point B to the time and velocity axis. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास सिर्फ अभी इतना ही है. अगर मैं इसको अगर मैं आपको ब्लैंक पेज पे करके बताऊं, ये आपके पास है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी एक्सिस है. इस साइड को हमने टाइम लिया हुआ है. बॉडी स्टार्ट्स इस जर्नी ए पॉइंट. और अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न है कि मैम हम लोगों ने ये ग्राफ को यहाँ से क्यों नहीं लिया, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो कैसे मूव करेगा आगे. यहाँ ज़ीरो है मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उसने अपनी कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव किया है. तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या बोला हमने, u, यहाँ पे a पॉइंट के ऊपर. ठीक है, ये v नहीं है, ये u है. ठीक है, जो अदर v, ये लेट मी मेक इट अगेन. 0 है, this is v, this is time in seconds.
So the body start its motion from this point A and it reach to the point B with initial velocity. अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो velocity हमने इस साइड को velocity लिया है तो velocity ज़ीरो होती, लेकिन initial velocity कुछ थी उसकी. अब यहाँ से ये ज़ीरो है, यहाँ से ऐसे अगर हम ऊपर की साइड मूव करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी थी उसकी u. हमने ऐसा बोला इनिशियल वेलोसिटी कितनी u के साथ मूव किया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विल बी सेम. मीन्स जैसे यहाँ पे अगर हम इसको फिर बता रही हूँ, बताना नहीं चाहती हूँ बिकॉज पढ़ना है आपको ये चीज़. 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में अगर इसका वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी 2 था तो अगले सेकंड में भी उसका चेंज 2 ही था, नेक्स्ट सेकंड में भी उसका चेंज 2 ही था. दैट इज़ द मीन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, सो अब देखते हैं कि इसने ये बोला. अब हम क्या करेंगे, बी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस के ऊपर और बी से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर. ओके, तो ये इसने बोला है अपने पैराग्राफ में. देखिए perpendicular lines BC, that B and C, you can see here BC and BE, they are drawn on the time axis and velocity axis. ठीक है, अब इसके ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी सच दैट इनिशियल वेलोसिटी इज OA. ठीक है, अब अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो OA, ये डिस्टेंस OA. ठीक है, दिस विल गिव यू द इनिशियल वेलोसिटी इज OA एंड फाइनल वेलोसिटी इज BC. ये OA, सॉरी ये एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी OA है तो ये आएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी OA. क्यों, क्योंकि यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी OB. इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, O ये है और BOB. दिस इज गिवन एंड फाइनल वेलोसिटी इज BC है BC और यहाँ से अगर आप लो तो OE, यहाँ से ही मैं इसको ले रही हूँ विच इज़ BC. तो BC फाइनल वेलोसिटी किसने बताई कितनी, V. अब आप देखिए ये पूरा B से लेके C तक ये पूरा कितना है V और ये कितना है U. तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो दैट इज़ AE, तो AE में फाइंड आउट कर सकती हूँ. अगर मैं आप ही को पूछूँ तो आप मुझे बताएंगे AE कितना आएगा, बिकॉज BC इज इक्वल्स टू OE, ये दोनों बराबर हैं. इसमें ये पोर्शन हमारे पास पता है हमको कितना है U और ये पूरा पोर्शन कितना है V. तो अगर मुझे इतना पोर्शन निकालना हो विच इज़ इक्वल्स टू दिस, तो कितना आएगा AE इज इक्वल्स टू दिस इज AE विच इज़ इक्वल्स टू BC माइनस पूरा BC माइनस AO. कैन आई से दिस? अब आप बोलोगे BC माइनस DC करना चाहिए था, ये पॉइंट D है आपका. ठीक है, ये D पॉइंट है, D और ये C. BC माइनस DC करना चाहिए क्योंकि दिस DC इज पैरेलल टू AO, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको AO ले रही हूँ. ठीक है, DC को पहले स्टेप में आप ऐसे लिख दो BC माइनस DC और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे इसको, क्योंकि DC इज इक्वल टू AO, सो BC माइनस AO. अब BC हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है OE के O से लेके E तक, तो BC कितनी है हमारे पास V और AO कितनी मैंने बोला था आपको इनिशियल वेलोसिटी U, तो V माइनस U. ठीक है, अब इसको देखते हैं ग्राफिकली, सॉरी इसको स्टेटमेंट से देखते हैं, सॉल्व करते हैं. वी ऑब्जर्व दैट BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, दैट इज BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC. ठीक है, एंड वी नो दैट DC इज इक्वल्स टू OA. तो हमने क्या किया, ये एक स्टेप हो गया, इसका ये नेक्स्ट स्टेप है BD प्लस AO कर दिया मैंने. समझ आया कैसे किया, जो मैंने आपको समझाया. BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC और DC मेरे पास AO के बराबर है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने BD प्लस AO कर दिया. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग BC इज इक्वल्स टू V, OA इज इक्वल्स टू U.
इसको हमने v ले लेना है, इसको u ले लेना है, ये बोला इसने। तो अगर इसका देखेंगे तो बी डी क्या आ जाएगा मेरे पास, बी डी, ये लेंथ, ये वाली पोर्शन कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, v माइनस यू। और ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, कैसे चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या बताया था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ v है, ये u है, सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ओके, नाउ सी व्हाट इज द फार्मूला फॉर, यहाँ पे यहाँ तक आपका एक काम खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट देखो, हमारा फार्मूला है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बी डी अपॉन टाइम, ए डी, ए डी। ठीक है, बी डी अपॉन ए डी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, 0 से लेके t सेकेंड्स। अब मैं ये बोलती हूँ कि ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी है, कैन आई से दिस, ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी होगी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ओ सी, इसलिए इसने यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज किया, ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी कर दिया। और ओ सी मेरे को पता है 0 से लेके यहाँ तक कितना टाइम है, टी टाइम हमने कंसिडर किया हुआ है। तो दिस इज v माइनस यू अपॉन टी। बड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये t जो है a के साथ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो आप इसको ऐसे करके फ्रेम कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, v इक्वल्स टू, v को यहीं रहने दिया, u को आप दूसरी तरफ ले गए, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जैसे हमको अपने क्वेश्चन में अपनी इक्वेशन में जिस तरह की ज़रूरत होगी हम उसी तरह से इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी दिया होगा कि दैट चेंज इन वेलोसिटी इज़ दिस, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें v माइनस यू की जगह डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल में वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन में हमको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे। जब हमको इसकी ज़रूरत होगी, अगर हमको उसको फ्रेम करना पड़ा थोड़ा, तो हम उसको ऐसे कर लेंगे। तो इन एनी वे वी कैन यूज़ दिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस। देन कम्स द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, अब ये सेम जैसे आपको वेलोसिटी टाइम में किया हमने, उसमें भी इसमें भी हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। तो इसमें हम लोगों ने क्या कंसिडर करना है, एक चीज़ तो पहले इनिशियल कंडीशन सेम है, दैट बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अब हमने ये बोला कि अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इट इज़ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी। तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एस। ठीक है, ये हमारे पास इस बार कंडीशन है। उस समय क्या कंडीशन थी पिछले वाले में, दैट इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी b है इन टाइम t। अब यहाँ पे हमारे पास है, इसने ये कंडीशन दी हुई कि इसने किसी भी t टाइम में डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो उसको हमने s से प्रेजेंट किया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल इन एनी टाइम t इज़ s। अब ये बोलता है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैंने आपको करवाया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कराया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक वो मोशन में गई है, पोजीशन टाइम ग्राफ याद करना, यहाँ से यहाँ तक उसने मूव करी है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो सारे जो ग्राफ में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी पहले भी, तो इसको रिकॉल करो कि यहाँ उसकी कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी। हमको ये नहीं गिवन है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमको सिर्फ वेलोसिटी गिवन है, यहाँ से वो यहाँ तक। हमको मैंने आपको बताया था वेलोसिटी गिवन हो, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर यहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो मैं निकाल सकती हूँ, एस विल बी इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, तो हम वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैंने और बताई थी कि अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो मैं सिंपली देखूँ कि जो ग्राफ मेरे पास बन रहा है उसके अंडर जो एरिया आता है, अगर हम लोग किसी तरह से वो एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। उतना ही डिस्टेंस उस बॉडी ने कवर किया होता है जितना उस कर्व के अंडर का एरिया होता है। अगर मैं किसी तरह से इस एरिया को फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल, और ये एरिया मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक यहाँ पे इस एरिया में एक ट्राइंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ट्राइंगल का एरिया मुझे मालूम है, रेक्टेंगल का भी एरिया मुझे मालूम है, इसका
एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। और इसका एरिया आ गया, इसका मतलब जितना ये एरिया आएगा उतना ही डिस्टेंस मैंने ए से लेके बी तक जाने में ट्रेवल किया हुआ है। ठीक है, ये पहले भी बताइए मैंने आपको बात, वही रिपीट हो रही है। नो सी, अब डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एस विल बी इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एक मिनट, इसमें देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी, इसका एरिया प्लस ओ ए डी सी, यहाँ पे डी आएगा, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। ठीक है, ओ ए डी सी एंड ए बी डी। ठीक है, ये आ जाएगा डिस्टेंस एस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसका फार्मूला पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए एंड ओ सी। ठीक है, अब प्लस ट्राइंगल है ए बी डी। अब ट्राइंगल के एरिया हमको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस क्या आ जाएगा? ए डी, हाइट कितनी आ जाएगी? बी डी। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग ओ ए इज इक्वल्स टू यू आपको मालूम है, ये हमने पीछे इक्वेशन में किया है। ठीक है, देन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ए डी विच इज इक्वल्स टू टी। ज़ीरो से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना टाइम होगा? टी टाइम, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा टी। ठीक है, और ये बोलता है बी डी, ये हमारे पास है बी डी, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। ये कितना आएगा? हमने पिछली इक्वेशन में फाइंड आउट किया, ये पूरा यू है, सॉरी वी है, और ये इतना इतना u है, तो ये कितना आ जाएगा? u v माइनस यू, जो हमने पीछे वाले इक्वेशन में किया। ठीक है, वहाँ से अंडरस्टैंड किया। तो v माइनस यू, और v माइनस यू हमने पिछली इक्वेशन में क्या प्रूफ किया? किसके बराबर होता है? ए टी, बिकॉज ग्राफ सेम है, सेम कंडीशंस है हमारे पास, सेम ग्राफ है, तो हम लोग उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ v माइनस यू इज़ इक्वल्स टू ए टी के बराबर होता है। ठीक है, अब उसको हम लोग जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेट्स सी हाउ वी गेट, देखो यहाँ से हमने कर लिया था सब्स्टिट्यूटिंग ओ ए इज इक्वल्स टू यू, ओ सी इज इक्वल्स टू टी, तो हम और बी डी जो होगा वो हमने पुट करना है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। सो हम लोग इस इक्वेशन में ये सब पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए डी, ये कितना लिया हमने? टी, और बी डी हमने क्या फाइंड आउट किया? ए टी के बराबर है, बी डी इज इक्वल्स टू ए टी, तो ये मैंने यहाँ पे ए टी लिख दिया बस। एस इक्वल्स टू यू टी, अब इसी को हमने सिंपल करके लिख दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी, ए इंटू ए टी है, टी इंटू ए टी है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो टी इंटू टी स्क्वायर, सो ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, जो आपने पहले चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वही इसमें है। ठीक है, सो गो थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, सी द वीडियोज़ 2-3 times so that you will be able to understand clearly. ठीक है, ओके।